Assalamu alaikum students. Today our object is qualitative analysis of given sample to identify the constituent. Now first we will see what will be our requirements, then what glasswares we are going to use, then we will follow the procedure. As we know, for the identification of carbohydrate, first we will perform the test, is Molish test. Let's see how we will perform it. For Molish test, we will need test tubes, holder, measuring cylinder, beaker. These are the glasswares and the requirements which we will fill in our manual, right? Alpha naphthol, and in the last is the sulfuric acid. Now first we will take the test tube and hold it in the test tube holder carefully. Then we will add a sample solution in it, about 2 ml sample solution. Then we will add alpha naphthol, 1 to 2 drops of alpha naphthol, 1 2, right? Then we will shake it. After shaking properly, we will add sulfuric acid by the side of the test tube very slowly. Handle it very carefully. Now we can observe a violet ring. See, here's a violet ring at the junction of two solution. Look here. Purple ring. Now what we have observed was a violet ring at the junction. We will write this over here, violet ring. हमने प्रिंसिपल लास्ट टाइम मॉलिश टेस्ट का पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि वॉलेट रिंग या ग्रीन रिंग अपेयर होगा. ग्रीन रिंग अपेयर होने का रीज़न ये था कि एक्सेस अल्फा नेप्थोल ऐड किया, राइट? हमने अल्फा नेप्थोल ऐड किया 2 ml टेस्ट सैम्पल में. देन ऐड हमने किया कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग द वॉल. मेक श्योर डू नॉट शेक इट, rotate between the palm. Well, this is not necessary to rotate it between the palm. Okay, but make sure you are not shaking the test tube after adding the sulfuric acid. Violet ring will appear or the green ring will appear. This green ring, if green ring appear, it means you have added excess alpha naphthol, right? तो observation हमारी थी violet ring appears. Then we will write the result, means अगर violet ring या फिर green ring appear हो गई, it indicates carbohydrate is present. Carbohydrate is present, right? अब नेक्स्ट टेस्ट जो हम करेंगे वो करेंगे आयोडीन टेस्ट. ठीक, 1 ml टेस्ट सोल्यूशन लिया, उसके अंदर 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे. अगर कलर चेंज अपेयर हुआ, इट्स मीन इट इज़ पॉलीसेक्राइड. इफ़ नो कलर चेंज अपेयर्स, देन पॉलीसेक्राइड इज़ एब्सेंट. पॉलीसेक्राइड एब्सेंट होगा तो हम नेक्स्ट टेस्ट पे मूव करेंगे. पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होगा तो हम नेक्स्ट टेस्ट पे मूव नहीं करेंगे, मीन्स बेरेंडिक और बारफॉइड टेस्ट नहीं करेंगे. Our next test is iodine test. As we know, we have to perform carbohydrate test for different for 5 unknown samples. So we have taken 5 test tubes. ठीक है, इसके अंदर हम 5 sample solution हमारा अपना ऐड करेंगे. आयोडीन टेस्ट में एज वी हैव डिस्कस दैट कि आयोडीन टेस्ट के अंदर पॉलीसेक्राइड विल गिव डीप ब्लू कलर, राइट? तो इसके अंदर पहले हम हमारे जो 5 डिफरेंट सैम्पल्स हैं, लाइक ग्लूकोज, माल्टोज, सक्रोज और स्टार्च, ठीक है, ये 5 सैम्पल्स 1 ml हम ऐड करेंगे. फिर देन उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स. हीट
करने की हमें ज़रूरत नहीं है. जैसे ही डीप ब्लू कलर जिस में शो होगा, इट विल इंडिकेट दैट इट कंटेन पॉलीसेकेराइड. Nothing changed. Right. So one last Now round, we will add this is iodine test for starch. First sample हमारा glucose है, then we will add next sample which is fructose, then in third it is sucrose, then maltose, and the last is starch. Now we will add iodine solution 3 to 4 drops. लेकिन ग्लूकोज के अंदर नो चेंज, फ्रक्टोज में नो चेंज, इन सक्रोज नो चेंज, माल्टोज नो चेंज. नाउ सी, स्टार्च के अंदर इंस्टेंटेनियसली डीप ब्लू कलर अपेयर हो गया. राइट. सो क्लियरली हम चेंज जो है इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब यही सैम्पल सॉल्यूशंस जो हैं हमने मिक्स कर दिए हैं ABCDE. ये आप लोगों का टास्क है. यू हैव टू टेल मी कि किस सैम्पल में, मतलब किस लेवल में जो है स्टार्च प्रेजेंट है. एज वी कैन सी ओनली B टेस्ट ट्यूब इज शोइंग कलर चेंज. राइट. सो यू हैव टू टेल विच टेस्ट ट्यूब कंटेन स्टार्च. क्योंकि हमारे पास जो हम अभी ऑब्जेक्ट फिल कर रहे हैं, हमारा वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो ग्लूकोज है. राइट. तो अकॉर्डिंग टू ग्लूकोज आयोडीन टेस्ट में हमने क्या देखा? नो कलर चेंज. राइट. मीन्स रिजल्ट एब्सेंस ऑफ पॉलीसेकेराइड. राइट. स्पेलिंग मिस्टेक, प्लीज़ इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक्स. नाउ नेक्स्ट टेस्ट क्या है? क्योंकि कलर चेंज नहीं है ग्लूकोज टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने देखा था, लेकिन स्टार्च में कलर चेंज था. तो अगर हमारे पास स्टार्च होता तो हम बेनेडिक्ट और बारफॉइड टेस्ट नहीं करते. लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास ग्लूकोज सैम्पल सोल्यूशन है, एब्सेंस ऑफ पॉलीसेकेराइड है, तो नेक्स्ट टेस्ट हमारा है बेनेडिक्ट टेस्ट. देन वी विल मूव टूवर्ड्स द बारफॉइड टेस्ट. अच्छा, जो अब हम देखेंगे उसके अंदर हम यही देखेंगे कि हम 5 सैम्पल सोल्यूशन की ऑब्जर्वेशन साथ में रखेंगे, क्योंकि पांचों का जो ऑब्जर्वेशन है, प्रोसीजर है, एग्जैक्टली सेम है. आप लोगों को सिर्फ ऑब्जर्वेशन, आपकी लोगों की ऑब्जर्वेशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आप लोग अपना आइडेंटिफाई कर सकें अननोन सैम्पल को. राइट. तो जो आप लोगों को बताती जा रही हूँ 5 सैम्पल्स जो साथ में दिखा रही हूँ फॉर कंपैरिजन, ताकि आप लोग इजीली कंपेयर कर सको. और फिर उसी के आगे जो है वही सैम्पल सॉल्यूशंस को मैं मिक्स कर दूँगी और डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में की लेबल्स लगा के फिर आपको बताना होगा कि कौन से सैम्पल में कौन सा सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन. जैसे अभी आयोडीन टेस्ट के लिए हमने किया है कि आयोडीन टेस्ट में हमने सोल्यूशन को मिक्स कर दिया था. ठीक है. पहले 1 2 3 4 5 लेबल किया, सैम्पल्स आपको बताया हमने ये ऐड किए हैं. एंड देन जब आपने देख लिया कि स्टार्च के अंदर डीप ब्लू कलर आ रहा है और रिमेनिंग सैम्पल्स में नहीं आ रहा है, तो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि डीप ब्लू कलर जैसे ही कलर चेंज होगा तो इट्स मीन इट कंटेन स्टार्च. द गिवन सैम्पल इज कंटेन पॉलीसेकेराइड. राइट. तो इसी तरीके से हम बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए करेंगे. 5 सैम्पल्स होंगे, 1 ml सैम्पल लिया, 2 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड किया, फिर हीट करेंगे मिक्सचर को. फिर पहले हम प्रॉपर उसकी ऑब्जर्वेशन देख लेंगे. फिर नेक्स्ट जो आपके पास 5 सैम्पल्स होंगे उसकी लेबलिंग ABCDE गिवन होगी. फिर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा विच सैम्पल कंटेन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और स्टार्च एंड सेक्रोज टू. Now we will perform Benedict test for reducing sugars. We are performing Benedict test for reducing sugars. We have taken 5 test tubes labeled 1 2 3 4 5. Now we are adding 1 ml glucose solution in test tube 1, fructose solution in test tube 2,
sucrose in test tube 3, maltose in test tube 4, and starch in test tube 5. As we can see the labels on the beaker, so these test tube solutions are known to us, that which solution, which test tube contain which solution. Now we are adding Benedict reagent in each test tube for about 2 to 3 drops. These test tubes are unknown to us, A, B, C, D, E. We don't know which test tube contain which solution. So the solutions are unknown to us. We have performed the same procedure. We have added the unknown solution 1 ml and then Benedict reagent is added. Now we are keeping it on in water bath for about 3 to 4 minutes. After 3 to 4 minutes we can see the precipitates will formed. Reducing test Benedict reagent जो है identify करता है whether the solution is reducing or non-reducing. If it is reducing, then it will show the precipitates. As we can see in this test tube, precipitates की formation start हो गई है, right? Now after a time we can see the precipitate formations. Now we will remove it from the water bath. See, ये A है, so these solutions are unknown to us. We don't know which solution it is. By the observation we have to identify, right? Now look over here, 1 2 3 4 5. ठीक है, फर्स्ट में था ग्लूकोज, ग्लूकोज इज़ रिड्यूसिंग. सेकेंड में फ्रक्टोज था, फ्रक्टोज इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग. थर्ड में सक्रोज था, सक्रोज इज़ नॉन रिड्यूसिंग. और 5 जो है स्लाइटली रिड्यूस हुआ है, लाइट ग्रीन कलर आया है, राइट? तो हमारे लिए फर्स्ट सबसे ज़्यादा जो डार्कर कलर आ रहा है ना, वो फ्रक्टोज में है. देन जो है फोर्थ है जो कि माल्टोज था, देन इट इज़ ग्लूकोज. और नो चेंज जो है वो सक्रोज और स्टार्च में आया है पॉलीसेक्राइड के अंदर. ठीक है, पॉलीसेक्राइड में स्लाइटली लाइट ग्रीन कलर आया है, मतलब स्लाइटली रिड्यूस हुआ है, लेकिन सक्रोज में नो चेंज आया है. ठीक, अब जो हमारे पास ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं जो अननोन है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच टेस्ट ट्यूब कंटेन सक्रोज, राइट, और विच वन कंटेन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज. और लाइट ग्रीन कलर हमने लास्ट सैम्पल टेस्ट ट्यूब में किस में हमने आइडेंटिफाई किया था, राइट? नाउ वी विल परफॉर्म आवर नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज़ बारफॉइड टेस्ट. फॉर बारफॉइड टेस्ट, बारफॉइड टेस्ट आइडेंटिफाई करता है, ओके, वी विल ऐड ग्लूकोज 1 ml इन टेस्ट ट्यूब solution. सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं. वी नो द सैम्पल विच वी आर एडिंग इन अ टेस्ट ट्यूब इन 1 2 3 4 5 टेस्ट ट्यूब्स, राइट? सक्रोज, नेक्स्ट इज maltose, and the last is starch. Barfoid test identify करता है whether it is reducing monosaccharide or reducing disaccharide. Now we are adding Barfoid solution in each test tube. Right, these test tubes. Now A, B, C, D, E are unknown for us. We don't know which solution contain which test tube contain which solution. Right now again we are keeping it on a water bath. As we have studied, 3 minutes के अंदर अगर कलर चेंज आता है तो इट्स मीन इट इज़ रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड, एंड इफ़ इट टेक्स more than 7 minutes, then it contain reducing disaccharides, right? Now it's taking its time. We can see their color change start हो गया. ठीक, अच्छा, कलर चेंज जो हुआ है विदिन 3 मिनट्स ग्लूकोज में हुआ है और फ्रक्टोज में हुआ है, राइट? विदिन 3 मिनट्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हमें कलर चेंज नज़र आ रहा है. मीन्स इट इज़ रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड. क्योंकि स्टार्च जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है तो इट विल नॉट रिड्यूस. सिमिलरली फॉर स्टार्च, एज आई हैव सेड अर्लियर कि आयोडीन टेस्ट जब हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है तो इट गिव्स नो चेंज. हाउएवर हमने बेनेडिक्ट में स्लाइट कलर चेंज देखा था, लेकिन बारफॉइड में कोई चेंज नहीं आया है. सही.
तो हम पॉलीसेक्राइड टेस्ट पे ही स्टॉप कर देते हैं, आयोडीन पॉलीसेक्राइड के लिए हम आयोडीन टेस्ट पे ही स्टॉप कर देते हैं, राइट। अच्छा, क्योंकि फोर्थ में माल्टोस था, तो डाइसेक्राइड है माल्टोस, तो अगर हम टाइम एक्सीड करते 7 मिनट्स से ऑनवर्ड्स ले जाते तो हमें इसमें भी कलर चेंज नज़र आता। तो 1-2 में हमें आइडेंटिफाई हो गया है, विद इन 3 मिनट्स कलर चेंज हुआ है, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में हम लिखेंगे इट इज़ रिड्यूसिंग शुगर, राइट। और 3 इज़ सक्रोज, इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग। सो फॉर सक्रोज बारफॉइड टेस्ट हम परफॉर्म नहीं करते हैं। जब हमारे पास बेनेडिक्ट टेस्ट में आ जाता है कि इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग, सो इट इज़ यूजलेस टू परफॉर्म द बारफॉइड टेस्ट, राइट, क्योंकि वो रिड्यूस ही नहीं होगा और कलर चेंज भी नहीं होगा। इसी तरीके से हम सक्रोज के लिए फिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट भी परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि नो कलर चेंज विल अकर बिकॉज इट विल नॉट रिड्यूस, राइट। नेक्स्ट टेस्ट, अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मैनुअल। क्या हमारे पास जो सैम्पल फ़िलहाल जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो ग्लूकोज कर रहे हैं, तो बेनेडिक्ट टेस्ट में हमने ग्लूकोज में देखा था कि इट कलर चेंज हुआ था, रेड प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए थे, रेड प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, राइट। और रिज़ल्ट में हम क्या लिखेंगे, अगर रेड प्रेसिपिटेट्स में रिड्यूसिंग शुगर, अगर रेड प्रेसिपिटेट्स हैं तो रिड्यूसिंग शुगर इज़ प्रेजेंट, राइट। नेक्स्ट टेस्ट हमने परफॉर्म किया बारफॉइड टेस्ट। बारफॉइड में भी हमने कलर चेंज देखा। कब तक हमने किया, हम इसके अंदर हाईलाइट करेंगे कलर चेंज, क्योंकि 3 मिनट्स के अंदर आ रहा है तो इट इज़ रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड, एंड इफ़ इट एक्सीड मोर, इफ़ इट टेक्स मोर देन 7 मिनट्स देन इट इज़ रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड। तो 3 मिनट्स के अंदर कलर चेंज आया, कलर चेंज विद इन 3 मिनट्स, तो वी विल राइट इट इज़ रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड, राइट। अब नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है सेलिवनॉफ टेस्ट। नाउ वी विल टेक 1 ml टेस्ट solution, then add 2 ml of Selivanov reagent, and we will also add glacial acetic acid, two to three drops, right। फिर उसको बॉईल करेंगे फॉर not for for 30 seconds, right, boil for 30 seconds. Now let's see what we will find out. We are performing Selivanov test. Sorry. Now we are performing Selivanov test for ketos. अच्छा, Selivanov test is positive for keto एक्सोसिस, राइट। अगर कलर चेंज होगा तो इट्स मीन कि कीटो एक्सोस प्रेजेंट है, राइट। हमारे पास 5 टेस्ट ट्यूब्स हैं, 1 2 3 4 5, जैसे हमने लास्ट तीनों टेस्ट में परफॉर्म किया, सेम प्रोसीजर है। वी नो द सैम्पल्स वी आर एडिंग इन दीज टेस्ट ट्यूब्स। थर्ड टेस्ट ट्यूब कंटेन्स सक्रोज, फोर्थ वन इज माल्टोज, and the fifth one is starch. Now we will add okay, same unknown ABCD, we don't know which test tube contain which samples. Now we are adding Selivanov reagent. Now for about 30 seconds we will keep it in a water bath. कलर चेंज होना शुरू हो गया है। These samples are unknown to us, ठीक है। Now we will see 1 2 3 4 5
जिसके अंदर कीटोन ग्रुप होगा उसके अंदर कलर चेंज होगा। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हम देख सकते हैं कलर चेंज हुआ है, चेरी रेड कलर आया है। थर्ड सक्रोज में आया है, क्योंकि सक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कम्बिनेशन है, राइट। और जो है फर्स्ट ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड होता है, नो कलर चेंज। फ्रक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, कलर चेंज वी कैन सी डीप चेरी रेड कलर अपीयर हुआ है। सक्रोज में भी चेरी रेड कलर अपीयर हुआ है, माल्टोज में नहीं है और स्टार्च में भी नहीं है, राइट। हम स्टार्च में देख सकते हैं बॉर्फॉइड में भी नो कलर चेंज था और सेलिवनॉफ में भी नो कलर चेंज है, राइट। तो हमें पता चल गया कि दो टेस्ट सोल्यूशंस हैं, एक फ्रक्टोज है, दूसरा सक्रोज है, जिसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप था, उसके अंदर चेरी रेड कलर अपीयर हुआ है। जो हमारे पास अननोन सैंपल था उसमें अब आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि विच टेस्ट ट्यूब कंटेन फ्रक्टोज एंड सक्रोज, ठीक है। यही देखें दो टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे पास, एक ए में कलर चेंज हुआ है और एक सी में कलर चेंज हुआ है, बाकी सब में नो कलर चेंज है। अच्छा, अगर हम ग्लूकोज के अकॉर्डिंगली देखें तो ग्लूकोज के अकॉर्डिंगली हमने क्या देखा, नो कलर चेंज, राइट। इट्स मीन एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। अब नेक्स्ट टेस्ट है ओसाजोन टेस्ट। ओसाजोन टेस्ट में हम क्या करेंगे, 3 ml टेस्ट सोल्यूशन लिया, फ्यू ड्रॉप्स फिनाइल हाइड्रोजीन ऐड किया, बॉईल किया उसको वाटर बाथ पे फॉर 30 मिनट्स, फिर कूल करेंगे सोल्यूशन को रूम टेम्परेचर पे, फिर उसकी स्लाइड प्रिपेयर करके ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। ओसाजोन टेस्ट के लिए हमने 3 ml सोल्यूशन लिया, उसके अंदर 5 ड्रॉप्स ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड किया, देन फिनाइल हाइड्रोजीन ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। देन वी आर कीपिंग इट इन अ वाटर बाथ फॉर अबाउट 30 मिनट्स। अच्छा, जब फिनाइल हाइड्रोजीन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है इट्स कॉल्ड ग्लूकोसाजोन, माल्टोज के साथ तो माल्टोसाजोन, लैक्टोज के साथ तो लैक्टोसाजोन, राइट। अच्छा, जब हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं, सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है, तो सुक्रोज के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। इसकी वजह यही है कि सुक्रोज इज़ नॉन रिड्यूसिंग, इट विल गिव नो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट। तो जब से हमें बेनेडिक्ट टेस्ट में ही पता चल जाता है कि इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो हम फर्दर टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि बॉर्फॉइड भी कोई कलर चेंज नहीं देता है और फिनाइल हाइड्रोजीन भी नहीं देता है। तो हमें बेनेडिक्ट टेस्ट पे ही आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि सक्रोज ही एक ऐसा एक्सेप्शनल डाइसेक्राइड है जिसमें जो नॉन रिड्यूसिंग है, राइट। इसके बाद देखें 30 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स वी विल कूल इट एट अ रूम टेम्परेचर एंड देन वी विल एग्जामिन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। नीडल शेप स्ट्रक्चर्स इंडिकेट कर रहा है रिड्यूसिंग शुगर इज ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बिल्कुल शार्प नीडल शेप आए हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोसाजोन, राइट। अच्छा, हाउ वी विल आइडेंटिफाई द वेदर, अच्छा क्योंकि दोनों के जो क्रिस्टल्स हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के वो नीडल शेप हैं, तो हम ऑन व्हाट बेसिस वी विल आइडेंटिफाई दैट आवर गिवन सैंपल इज ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलिवनॉफ टेस्ट, मतलब फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस से हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। जब हमारे पास क्रिस्टल शेप आ जाते हैं नीडल शेप, तो हम फिर फर्दर देखते हैं सेलिवनॉफ टेस्ट की ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। अगर हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, मतलब नो कलर चेंज है, तो इट इज़ ग्लूकोज। और अगर हमारे पास कलर चेंज आया है, ठीक है, ब्रिक रेड कलर चेंज आया है, तो क्योंकि सेलिवनॉफ टेस्ट इज़ पॉजिटिव फॉर कीटोहेक्सोसिस, तो अगर ब्रिक रेड कलर चेंज आया है या चेरी रेड कलर आया है तो इट्स मीन के कीटोन प्रेजेंट है। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज के अंदर। तो फ्रक्टोज अगर कीटोन है तो फ्रक्टोज है, और अगर एल्डिहाइड होगा तो ग्लूकोज है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोसाजोन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर है वो सनफ्लावर पेटल शेप्ड क्रिस्टल इंडिकेट्स माल्टोज, दिस इज कॉल्ड माल्टोसाजोन।
और hedgehog powder puff shaped crystals formed by lactose, this is called lactosazone. राइट यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए, मुझसे भी बताते हुए मिस्टेक हुई है. ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो हम 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करते हैं वो इसमें नहीं करते हैं, बल्कि ओसोजोन के अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे. ग्लेशियल एसिटिक एसिड के 2 to 3 ड्रॉप्स. ठीक. अच्छा, ओसोजोन अगर हम ग्लूकोज के अकॉर्डिंगली देखें तो हमने क्या देखा है, निडल शेप स्ट्रक्चर देखा है विच इंडिकेट्स ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट. हमने ग्लूकोज को किसकी बेसिस पे किया है, एल्डिहाइड, जो यहाँ पे ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट. ठीक. अब you have to write down the result. The unknown sample contains glucose and then you will discuss it in a discussion. रिमेनिंग एक्सपेरिमेंट जो है हमारा गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है. अच्छा, जो हमने आज किया है वो फ्रक्टोज है, माल्टोज है, सक्रोज एंड आयोडीन है. तो यू हैव टू फिल दिस ऑब्जर्वेशन बॉक्स जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है.